Hello everyone, I am Sumit Bharti, your accountancy tutor. Now let's come to chapter second. Chapter 1 को हमने 4 वीडियोस में कंप्लीट किया. आई होप यू एंजॉयड द क्लासेस. चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 1 के लास्ट वीडियो में जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए थे, आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट. लेट्स चेक इट आउट द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 was what do you mean by daters? Daters क्या होते हैं? तो आंसर इज daters refers to those persons or parties to whom amount is receivable or recoverable on account of credit sales. I repeat, debtors refers to those persons or parties by whom amount is recoverable or receivable on account of credit sales. जिन लोगों को हमने माल उधार में बेचा और जिनसे हमें पैसे लेने हैं उन्हें हम बोलते हैं डेटर्स. जिनको हमें अमाउंट पेमेंट करना होता है वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग? गिव इट्स एग्जांपल. Window dressing refers to the practice of manipulation in the books of accounts to show better financial position that of actual. दिखावा करना. And the example is excess valuation of closing stock. न्यूमेरिकली हम आपको आने वाले दिन में समझाएंगे कि कैसे हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अगर ज्यादा कर लेते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा डिस्क्लोज होते हैं. थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाई प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरियस सोर्स डॉक्यूमेंट्स शुड बी यूज्ड. व्हिच एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन डिस्कस्ड? आंसर इज एट्रीब्यूट ऑफ रिलायबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स डॉक्यूमेंट? गिव इट्स एग्जांपल्स. Source document refers to verifiable documents which supports a financial transaction as an evidence. For example, cash memo, bill, property deed, paying slip, etc. Question number 5. What do you mean by a relevant accounting information? A relevant accounting information refers to those information which affect the decision of users of accounting. A relevant accounting information refers to accounting information which affect the decision of users of accounting. Next, unnecessary accounting information should be avoided or should be merged with other information. Which accounting attribute has been discussed? Answer is attribute of relevance. Question number 7. While preparing accounting information, various explanatory notes or notes to accounts should be attached. Which attribute of accounting has been discussed? Answer is attribute of understandability. Question number 8. While preparing accounting information, data for previous year should also be attached with data of current year. Which attribute of accounting has been discussed? Answer is attribute of comparability. Question number 9. What do you mean by inter-firm and intra-firm comparison? When the financial performance of two firms are compared, it is called inter-firm comparison. Whereas when the financial performance between two subsequent years are measured or compared, it is called intra-firm comparison. Last question, why accounting is also called service function? Accounting is also called service function because it provides a lot of information about the business performance like capital structure, solvency, profitability, future growth and prospects. So this was all for chapter 1. Chapter 1 में हमने टोटल मिला के 4 वीडियोस में 50 क्वेश्चंस के नोट्स बनाए हैं. I hope you got well entire chapter.
So let's begin with chapter number 2, which is also very, very important chapter because the name of the chapter is Basic Accounting Terms. और इस चैप्टर में हम आने वाले सेशंस में जो टर्म्स काम में यूज में आने वाले हैं, जो पूरी अकाउंटिंग लाइफ में या पूरे अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर्स आप 11th 12th और ऑनवर्ड्स पढ़ने वाले हैं, उनमें ये टर्म्स काम आएंगे. दैट इज वाई from our point of view it is very, very important chapter. So let's begin with the chapter. In this video, in this session, we'll be taking total 5 terms, and the terms that will be discussed in this session are transaction, event, account, drawings and liabilities. आज हम इन 5 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला है ट्रांजेक्शन. व्हाट इज मीन बाय ट्रांजेक्शन? देखिए, फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि अकाउंटिंग साइकिल बिगिंस विद आइडेंटिफिकेशन. तो मैंने उस समय आपको बताया कि व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन फंक्शन, क्या आइडेंटिफाई करना है. फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ ट्रांजेक्शन और इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो एक ट्रांजेक्शन में 2 खास बातें होती हैं. नंबर 1, इट मस्ट बी मेजरेबल इनटू मॉनेटरी टर्म्स, and number 2, it must affect your financial position, means your position of assets, capital and liability. So बिल्कुल प्रिसाइसली अगर हम बोले कि what is mean by financial transaction or transaction refers to exchange. Financial transaction or transaction refers to exchange in money or money's worth, in money or मनीज वर्थ, जिसको या तो आप पैसे में माप सकें, रुपयों में माप सकें, या मनीज वर्थ में भी हो सकता है. यानी मैंने आपको अपनी सर्विसेज दी, ठीक है, और बदले में मेरे को आपसे 10,000 रुपीज लेने हैं. आपने बोला कि सर मेरा मोबाइल का बिजनेस है, आप 10,000 रुपीज की जगह मेरा मोबाइल ले लो, जिसको पुराने सिस्टम में हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते थे. दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, राइट. तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रेफर्स टू एक्सचेंज इन मनी और मनीज वर्थ विच मस्ट अफेक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन. योर फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन कंसिस्ट 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज योर प्रॉपर्टीज, योर असेट्स. या तो इससे आपकी असेट्स पर इंपैक्ट आना चाहिए या इससे आपकी लाइबिलिटीज. आज हम डिटेल में बात करेंगे लाइबिलिटीज के बारे में. सिंपली अगर मैं बोलूं तो ऑब्लिगेशंस जो आपको देना है उनके बैलेंसेस पर इफेक्ट आना चाहिए, या आपकी कैपिटल, आपका खुद का पैसा, उस पर इफेक्ट आना चाहिए. सो अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रेफर्स टू एक्सचेंज इन मनी और मनीज वर्थ which must affect your financial position of the business. Your means not you only, your business, because you and your business both are distinct, both are separate from each other. We are talking from the viewpoint of your business only, not the businessman. Financial position पर effect आना चाहिए, and financial position consists 3 important terms. Number 1, that is assets, your properties, liabilities, your obligations which are payable to the outsiders, and your capital, that is your contribution into your own business. So this was the meaning of financial transaction. Next term is event. देखिए, इवेंट को हिंदी में हम बोलते हैं घटना, लेकिन यहां पर what is mean by event? Event refers to result of financial transaction. Result of financial transaction. एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं. आपने बुक्स खरीदी, दिस इज ट्रांजेक्शन. आपने पढ़ाई करी, दिस इज ट्रांजेक्शन. आप स्कूल जा रहे हो, दिस इज ट्रांजेक्शन. आप उसका रिवीजन कर रहे हो, दिस इज ट्रांजेक्शन. आपने एग्जाम दिया, दिस इज ट्रांजेक्शन. उसका रिजल्ट आया, दिस इज इवेंट. सो जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे whatever we get the output from various financial transaction is called event. यानी अगर मैं बोलूं कि हमने 10 लाख रुपए का माल खरीदा, we have purchased goods for rupees 10 lakhs. Out of costing rupees 10 lakh during this year we have sold goods for rupees 8 lakhs. हमने उसमें से 8 लाख का माल बेच दिया. Rupees 2 lakh
is pending. Rupees 2 lakh, stock of rupees 2 lakh has been lying down in our godown as a stock. तो अगर मैं बोलूं कि आपके गोडाउन में 2 लाख रुपया का स्टॉक पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस फिगर? दिस इज इवेंट. आपने 10 लाख का माल खरीदा, ट्रांजैक्शन. उसमें से 8 लाख का माल बेच दिया, ट्रांजैक्शन. तो हमें पता चला कि हमारे पास 2 लाख रुपए का माल बचा हुआ है. एक और एग्जांपल लेते हैं इवेंट और ट्रांजैक्शन को समझने के लिए. हमने आपको बोला कि आपने 10 लाख रुपए का माल खरीदा, ठीक है. उसमें से आपने माल बेचा और जो माल आपने बेचा वो 15 लाख रुपए का था. 10 लाख का माल आपने 15 लाख रुपए में बेचा. 10 लाख का माल खरीदा, ट्रांजैक्शन. 15 लाख में माल बेचा, ट्रांजैक्शन. 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, दिस इज इवेंट, राइट. एक थर्ड एग्जांपल और लेते हैं. हमने बैंक में 10,000 रुपए का कैश डिपॉजिट करवाया, ट्रांजैक्शन. 8,000 रुपए का कैश पेमेंट किया, ट्रांजैक्शन. 2,000 रुपए का कैश का बैलेंस बचा, दिस इज इवेंट. सो इवेंट refers to result of financial transaction which is only and only because of various financial transaction. So it was also a very easy term. 2 टर्म अभी तक हमने क्लियर कर लिए हैं, ट्रांजैक्शन, इवेंट. नेक्स्ट वन इज अकाउंट. देखिए मैं यहां पे आपको एक अकाउंट बना के दिखाता हूं. वैसे तो लेजर बोल के हमारा एक पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर है, बट वी मस्ट लर्न व्हाट इज मीन बाय अकाउंट. ये एक वर्ड बनाया मैंने, टी. इधर एक कॉलम, इधर एक कॉलम. अब इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 2 साइड, जीवन के 2 पक्ष, सुख और दुख. फैमिली के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, पेरेंट्स, मम्मी और पापा. वैसे ही अकाउंट के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट रेफर्स टू डेब्योर एंड क्रेडिट रेफर्स टू क्रेडिट. व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स इनहेरेंट इन डेबिट एंड क्रेडिट? डेब्योर का मतलब क्या होता है सर? क्रेडिट, सीआर का मतलब क्या होता है सर? That would be discussed later on because this is too early stage, right? ये एक अकाउंट का फॉर्मेट है. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाया राम्स अकाउंट, ठीक है. वो डेबिट साइड है. ये वाला जो कॉलम होता है वो डेट का होता है. ये पर्टिकुलर्स का होता है. ये जर्नल के पेज नंबर जहां से हम एंट्रीज लेकर आ रहे हैं, और ये डेबिट का अमाउंट. सेम ये का ये चीज हमें वहां पर लिखना है. डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल का पेज नंबर और अमाउंट. तो अभी फिलहाल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का मीनिंग पढ़ना है. व्हाट इज मीन बाय अकाउंट? देखिए एक सिंपल सा हमने ट्रांजैक्शन लिया कि राम को हमने माल बेचा, ठीक है. क्रेडिट पर हमने राम को गुड्स सेल आउट किया 20,000 रुपीज का. अब मैंने आपको जो लास्ट चैप्टर था उसमें बताया था कि अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज वन विच अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स. एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होता है जो कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है, डेबिट एंड क्रेडिट. तो अगर हमने राम को माल बेचा तो अब हम राम से पैसे मांगते हैं, राम का बैलेंस बढ़ेगा और हमारा जो सेल्स है, हमारी जो बिक्री है वो भी इंक्रीज हो गई, गुड्स हमारा कम हो गया. या और एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, हमें राम से कैश मिला या हमने राम को कैश दिया. फाइनली हम ये एग्जांपल लेते हैं, हमने राम को कैश दिया, राम को हमने कैश का पेमेंट किया. तो राम का जो भी बैलेंस था वो अब कम हो गया. राम हमसे 15,000 मांगता था, हमने उसको 10,000 का पेमेंट कर दिया. तो ऑब्वियसली राम अब हमसे कितना मांगेगा? 5,000. राम का बैलेंस कम हुआ और हमारा कैश का भी बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि हमने कैश का पेमेंट कर दिया, ठीक है. तो अब ये 2 अकाउंट में जाएगा, राम के अकाउंट में और कैश के अकाउंट में. तो हम ये बोल सकते हैं कि अकाउंट इज अ प्लेस ओपनड इनटू द लेजर which summarizes all transactions related to a particular account या और
related to a transaction related to a particular person or any assets or capital or liability. ठीक है, तो बेसिकली जो लेजर में खुलने वाले अकाउंट है वो 5 तरह के होते हैं। या तो असेट्स का अकाउंट हो सकता है, या लाइबिलिटी का अकाउंट हो सकता है, या आपका कैपिटल का अकाउंट हो सकता है, किसी इनकम का अकाउंट हो सकता है, या किसी एक्सपेंस या लॉस का अकाउंट हो सकता है। आई रिपीट, अकाउंट इज अ प्लेस opened into ledger which summarizes transactions related to a particular assets, liability, capital, income and expenditure. An account has two sides which are called debit and credit. So आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट, अधिकतर बच्चे क्या होता है कि जब उनसे पूछा जाता है ना कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, वो उसके जर्नलाइजिंग रूल्स बोलने लग जाते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। These are all incorrect answer. What is mean by debit and credit? You can see debit and credit are two important sides of an account. एक अकाउंट के दो साइड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, an account is a place opened into ledger which summarizes financial transactions related to a particular asset, liability, capital, income or expenses and losses, right? So this was meaning of account. तीसरा टर्म हमने क्लियर कर लिया अकाउंट का। लेट्स कम टू द फोर्थ वन, दैट इज ड्राइंग्स। देखिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत नया सा टर्म है। हमने अब तक अपनी जिंदगी में पढ़ा ड्राइंग, कलाकारी, चित्रकारी, लेकिन यहां पर है ड्राइंग्स। तो फॉर कॉमर्स स्टूडेंट व्हाट इज मीन बाय ड्राइंग्स? व्हेन एन ओनर draws amount from his business in any form for his personal use. Important बात is amount has been taken away by amount taken away by owner from his business for his personal use is called drawings. इंपॉर्टेंट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अमाउंट, सबसे पहले बात करते हैं अमाउंट। जरूरी नहीं है कि आप अपने बिजनेस से जो कुछ भी निकाल रहे हैं वो हमेशा और हमेशा कैश के फॉर्म में भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दवाई की दुकान है और आपको घर के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली आप मेडिसिन कहां से लेंगे? अपने ही शॉप से या अपने ही बिजनेस से लेंगे। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉइंग्स, क्योंकि आपने अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए क्या निकाला? स्टॉक निकाला। ठीक है, उसके बाद अभी सपोज आपका फर्नीचर का काम है और आपने घर के लिए उसमें से कुछ फर्नीचर ले लिया, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉइंग्स। आपने गुड्स लिया है लेकिन आपका फर्नीचर का काम नहीं है, ठीक है, और आपका राशन का काम है। आपने दुकान में एक फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है, और उस फ्रिज में आप चाहते हैं कि उस फ्रिज को आप रिप्लेस कर दें, बड़ा मॉडल लेकर आ जाए, और उस फ्रिज को आपने अपने घर के काम में ले लिया। तो आपने अपने दुकान से क्या लिया? आपने गुड्स नहीं लिया, आपने स्टॉक नहीं लिया, आपने एक फिक्स असेट्स ले ली, दैट इज ऑफिस इक्विपमेंट और रेफ्रिजरेटर। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉइंग्स। और आपने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कैश विड्रॉ किया, दिस इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉइंग्स। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ओनर अगर अपने इनकम टैक्स का पेमेंट, ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म का ओनर या पार्टनर अगर अपने इनकम टैक्स का पेमेंट बिजनेस के अमाउंट से करता है, इट इज ऑल्सो ड्रॉइंग्स, इट इज नॉट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है। ये अगर आपने अपने बिजनेस से इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, इट इज ड्रॉइंग्स। अब सवाल आता है क्यों सर, इनकम टैक्स तो बिजनेस में लगता है? बिल्कुल लगता है, लेकिन कंपनीज के इनकम पर टैक्स लगता है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स लगता है बिजनेसमैन पर। यानी बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा और बिजनेस का खर्चा दोनों अलग अलग है। अगर आपने अपने पर्सनल खर्चों का पेमेंट अपने बिजनेस से किया है तो ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है।
It is not related with the business because it is related with businessmen. इसी तरह से अगर आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई इंश्योरेंस करवाया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, या उनके ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए पैसा अगर आपने डाला है, देन इट इज योर बिजनेस एक्सपेंस और बिजनेस ट्रांजेक्शन. बट अगर एक ओनर ने, एक पार्टनर ने अपने लाइफ इंश्योरेंस का पैसा अगर अपने बिजनेस में से पेमेंट किया, देन इट इज ड्रॉइंग्स बिकॉज इट इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन. ठीक है. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टी के लिए किया हुआ है, गुड्स के लिए किया हुआ है, इट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन. एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन. लेकिन अगर आपने अपना पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, एलआईसी प्रीमियम का पेमेंट किया, और वो भी बिजनेस के कैश से, तो ये क्या है? ये आपका ड्रॉइंग्स है, बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन नहीं है. इज इट क्लियर? ठीक है. पर्सनल ट्रांजेक्शन है. बच्चों की स्कूल फीस का पेमेंट आपने कर दिया बिजनेस बैंक अकाउंट से, वेदर इट इज ट्रांजेक्शन? यस, इट इज ट्रांजेक्शन, बट इट इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन. अगर कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन आपने बिजनेस के रिसोर्सेज से किया है, इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स, राइट? नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी. व्हाट इज मीन बाय लायबिलिटी? आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेते हैं लायबिलिटी. तो सबसे पहले मीनिंग के बारे में बात करते हैं. लायबिलिटीज एकदम, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूं कि लायबिलिटी क्या है, तो हम बोल सकते हैं लायबिलिटी रेफर्स टू ऑब्लिगेशंस, जिसमें यह सेंस निकलता है कि हमें देना है. पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको बड़ा कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई पे खर्चा कर रहे हैं. जब आप कुछ बन जाएंगे, इट विल बी योर लायबिलिटी टू सर्व योर पेरेंट्स एट utmost. इट इज योर लायबिलिटी बिकॉज इट इज योर ऑब्लिगेशन. तो लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज मीन बाय लायबिलिटीज? लायबिलिटीज रेफर्स टू ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस व्हिच इज पेबल टू द आउटसाइडर्स. अगर सिर्फ लायबिलिटी की बात आए तो हमें लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं समझना है, सिर्फ अगर लायबिलिटी की बात है. लेकिन अगर स्पेसिफिकली वर्ड दिया हुआ है इंटरनल लायबिलिटीज, तो इसका मीनिंग है कैपिटल. इसका मीनिंग क्या निकलता है? कैपिटल. ठीक है. सिर्फ अगर हम लायबिलिटीज के बारे में बात करें तो लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर. So liabilities refers to the obligation of the business which is payable to the outsider other than owner. I repeat, liabilities refers to obligation of the business which are payable to the outsiders other than owners, because whatever is payable by the business to the businessman, it is your internal liability, it is your capital. तो वापस मैं आपको बोलता हूं, आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है, आपका नाम है राम, और आपने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया का पैसा डाला. यह है आपकी कैपिटल. आपने इस बिजनेस का नाम रखा राम स्टोर. राम स्टोर और राम, पहले यह समझिए कि दोनों बिल्कुल अलग अलग है. Whatever you have invested, that is rupees 5 lakh into your business, this amount will be termed as capital, and this capital only will be treated as internal liability. अब आप बोलोगे कि सर ये internal liability कैसे है? क्योंकि whenever राम स्टोर will be wound up, जब कभी भी राम स्टोर बंद होगा तो राम स्टोर आपको ये अमाउंट वापस देगा, लौटाएगा. यानी बिजनेस को भी ये पैसा देना है. किसको देना है? बिजनेसमैन को देना है. मैं वापस बोलूंगा, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विद द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, नॉट द बिजनेसमैन. दैट इज व्हाई कैपिटल इज कंसीडर्ड, ट्रीटेड, कॉल्ड एज इंटरनल लायबिलिटी. लेकिन जब हम सिर्फ लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, which is referred to the obligation of the business. Liability refers to the obligation of the business which is payable to the outsiders other than owners. ओनर के अलावा जो कुछ भी पेमेंट करना है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज. सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज के टाइप्स पर. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स.
long term liabilities, short term liabilities. Long term liabilities refers to those liabilities which are payable after a longer period of time, usually after 1 year. यूजुअली जिन लाइबिलिटीज का पेमेंट हमें 1 साल के बाद करना होता है उनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं, एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिसको हम करंट लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं. और क्या बोल सकते हैं हम? करंट लाइबिलिटीज भी हम बोल सकते हैं. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज रेफर्स टू दोज liabilities, those obligations which are payable by the business usually within a shorter period of time or usually within a year. ऐसी liabilities जिनका पेमेंट हमें लगभग 1 साल के अंदर अंदर करना होता है उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, आगे की बात करते हैं. सबसे पहले लेते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. यूजुअली ऐसे लोन्स जो हमने लंबे समय के लिए लिए हैं, जिनका पेमेंट हमें लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद करना है, 5 साल 7 साल 10 साल के बाद करना है, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन. द लोन्स विच आर रेज्ड अंडर सिक्योरिटी, अंडर सम हाइपोथिकेशन, अंडर सम assets with the security of the assets. जब हम गिरवी रखकर कोई लोन लेते हैं तो उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं. अधिकतर बैंक्स से लिए गए लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन सिक्योर्ड लोन्स होते हैं. तो सिक्योर्ड लोन का मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है बैंक लोन्स, राइट. Unsecured loans are those loans which are taken by a business from his friends, relatives, etc. जो हम अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से लेते हैं. इस तरह के लोन्स को हम अनसिक्योर्ड लोन्स बोलते हैं बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ एनी सिक्योरिटी. उसके बाद डिबेंचर्स. एक टर्म डिबेंचर्स आपके बिजनेस स्टडीज में भी आएगा. लेट्स मेक शॉर्ट डिस्कशन ऑन द टर्म डिबेंचर्स. डिबेंचर्स को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र, लोन का एक्नॉलेजिंग लेटर. Whenever companies used to raise loans from general public, then company used to issue acknowledgement letter that we are raising loans and the rate of loan will be this, repayment will be this, on this time repayment will be made, we will pay interest at this percentage, etc. etc. We are raising loan for this purpose. तो कंपनीज जब जनरल पब्लिक से लोन लेती है तो उस लोन की क्या क्या टर्म होगी और उसका एक प्रूफ और एक्नॉलेजमेंट लेटर जो इशू किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स, ऋण पत्र, यानी एक्नॉलेजमेंट लेटर ऑफ लोन रेज्ड बाय अ कंपनी इज कॉल्ड डिबेंचर. सो यूजुअली जितने भी डिबेंचर्स कंपनीज इशू करती है वो लॉन्ग टर्म लोन्स में उनको कैटेगराइज किया जाता है. लेट्स कम to short-term loans, short-term liabilities or current liabilities. So here the meaning is very very easy. Short-term or current liabilities refers to those liabilities which are repayable after a shorter period of time, usually within a year, is called short-term liabilities or current liabilities. And the common examples, number one, it is bank overdraft, and nowadays it is very popular with cash credit. बैंक ओवरड्राफ्ट. देखिए, what is mean by bank overdraft? Bank overdraft refers to a loan in which the bank customer is allowed to make excess payment that of his actual deposit, and usually it is given on bank's current account. बैंक में एक बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है, बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट के कैटेगरी में खोला जाता है. आप बिजनेस स्टडीज में टाइप्स ऑफ बैंक्स अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज डिटेल में आएगी कि बिजनेस के बैंक में खोले जाने वाले अकाउंट करंट अकाउंट होता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं के बराबर मिलता है. तो करंट अकाउंट पे एक फैसिलिटी मिलती है आफ्टर प्लेजिंग, आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ सम असेट्स, की आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी. यानी आपका जितना बैलेंस है उससे ज्यादा भी आप पेमेंट कर सकते हैं. Obviously, जितना भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे the bank will charge interest on it and it will be treated your business expense. Interest on bank overdraft बिजनेस का खर्चा माना जाएगा.
So it is your current liability. Nowadays it is very popular with the name of cash credit. देखिए कैश क्रेडिट अकाउंट या सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट की एक लिमिट मिलती है कि हमने बैंक से को एक अप्लाई किया कि हमें 10 लाख रुपए की आप लिमिट अलाउ कर दें, यानी अगर हमारा बैलेंस 10 लाख रुपीस माइनस में भी जाएगा तब तक हम वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहां पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड एनी टाइम हमें 10 लाख रुपए की या उससे ज्यादा की कोई असेट्स अपने बैंक के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उसको मॉर्गेज रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी इन विच अ लिमिट हैज बीन अलाउड बाय द बैंक टू यू फॉर मेकिंग एक्स्ट्रा पेमेंट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट अकाउंट, सीसी अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस। The next term is creditor. I think now you are very acquainted with this term, that is creditor. हिंदी में जिसको बोलते हैं लेनदार। Creditor refers to the persons or the parties to whom amount is payable on account of credit purchases. हमने जिन लोगों से माल खरीदा है, हमें उन माल का पेमेंट करना है और उनको हम बोलेंगे क्रेडिटर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। राम आपका सप्लायर है एंड यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम हिम फॉर ₹2 lakh. Immediately you paid cash ₹1,20,000 to him. So what is remaining balance payable to him? 80,000. So Ram will be treated your creditor for ₹80,000. आपने राम से 2 लाख का माल खरीदा, 120 का आपने इमीडिएटली उसको पेमेंट कर दिया। व्हाट इज पेंडिंग अमाउंट टू हिम? 80,000। तो आप बोलोगे कि राम हमारा क्रेडिटर है बिकॉज वी हैव टू पे अमाउंट टू राम ₹80,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हमने लिया है बिल्स पेबल। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो एक टर्म हमने लिया ना बिल, जो हम दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब हमें ये सामान दे दीजिए, पेट्रोल भर दीजिए और हमें बिल दे दीजिए, ये कॉन्सेप्ट हटाइएगा। यहां पर बिल का मतलब ये नहीं है। तो व्हाट इज मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट written on stamp paper or a paper duly stamped। या तो आप स्टैम्प पेपर पे लिखेंगे या प्लेन पेपर पे लिखेंगे जिस पर कोड के आप स्टैंप लगाएंगे। यूज्ड इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस पेपर का यूज होता है जब हम माल या सर्विसेज को क्रेडिट में खरीदते या बेचते हैं। फॉर सेफ्टी ऑफ आवर पेमेंट, हमारे पेमेंट की सेफ्टी के लिए। अब इसको लिखा कैसे जाता है? The seller writes the bills of exchange. Seller bill of exchange पर लिखता है that you will pay me amount of rupees, कोई भी एक fictitious amount लिखते हैं कि you will pay me ₹2 lakh after 4 month of this date। आप आज की तारीख से 4 महीने के बाद मेरे को 2 लाख रुपया देंगे, ऐसा डायरेक्शन देता है पेमेंट करने के लिए। तो the person who writes this bills of exchange is entitled to receive the payment, and the person who accepts, who puts his signature and giving his acceptance for and giving his commitment for making payment is called acceptor। So लिखने वाले या ड्रॉवर के लिए उसको पेमेंट मिलेगा और जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो लिखने वाले के लिए फॉर ड्रॉवर इट इज बिल्स रिसीवेबल बिकॉज ही विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट, एंड द पर्सन हु हैव परचेस्ड, द पर्सन हु हैव एक्सेप्टेड, द पर्सन हु इज लायबल टू मेक पेमेंट, उसके लिए ये होगा बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल भी हमारी लाइबिलिटी है। तो आई रिपीट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी कैसे है कि व्हाट इज मीन बाय बिल्स पेबल? अ बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी टर्म्ड एज बिल्स पेबल for the acceptor who is liable to make payment after a certain period of time। एक बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने वाले के लिए लाइबिलिटी है,
जिसने ये एक्सेप्टेंस दी है कि वो एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट सर्टेन पीरियड के बाद उसके होल्डर या उसके ड्रॉवर को करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस पेबल। इसको हम एक्सपेंसेस पेबल भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेबल। देखिए, दिमाग से, अब एक कॉमर्स स्टूडेंट आप बनने जा रहे हैं तो दिमाग से एक चीज हटाइए कि एक्सपेंसेस और पेमेंट में फर्क होता है। अगर हम ये बोलते हैं कि आज हमारा खर्चा हो गया, आज हमारा खर्चा हो गया, इट डजंट मीन दैट कैश डिसबर्समेंट, कैश आउटफ्लो हैज आल्सो टेकन प्लेस। अगर आपने बोला कि आज मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, इट डजंट मीन दैट यू हैव पेड अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख ऑल्सो। हाँ, अगर आप ये बोलते हैं कि आई हैव पेड रुपीज 1 लाख, देन इट सिंपली मीन्स, इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट you have paid amount of rupees 1 lakh and the cash outflow of rupees 1 lakh has taken place, right? So payment और expense में अंतर होता है और हमने यहां पर बात करी है outstanding expenses की। बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। आपके यहां पर एम्प्लॉइज काम करते हैं और उनकी जो मंथली सैलरी है, 2 3 4 जितने भी एम्प्लॉइज है, उनकी जो मंथली सैलरी है दैट इज ₹20,000 पर मंथ। सो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए 20,000 रुपीज 12 मंथ्स के हिसाब से आपका सैलरी बोल के एक्सपेंस कितना हुआ? 2,40,000। यानी अगर आप ये बोलते हैं कि सर आई एम हैविंग 2 employees and each employee is payable monthly salary of ₹10,000, total monthly salary is ₹20,000 for a year, the total expense of the salary will be recorded in the books of accounts, that is ₹2,40,000। ये आपका खर्चा हो गया है। अब देखते हैं, मैंने पूछा कि भाई 2,40,000 रुपया तो आपका सैलरी का खर्चा हो गया, क्या सैलरी सारी की सारी सैलरीज आपने टाइम से पेमेंट कर दी? क्या कैश में पेमेंट कर दी? बोले नहीं सर, अभी तक हमने उसमें से सिर्फ 2 लाख रुपया ही पे किया है। तो पेमेंट कितना किया? कैश में या गुड्स के फॉर्म में, वॉटेवर, आपने पेमेंट कितना किया? 2 लाख रुपया। 40,000 रुपया आपने पे नहीं किया। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड दिस विल बी योर लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, बिकॉज ये आपको देना है, ठीक है, ये आपको पेमेंट करना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? Outstanding expenses refers to expenses payable whose benefit has been received but amount has not been paid yet. I repeat, outstanding expenses refers to the expenses whose benefit has been received but amount has not been paid yet. What is its nature? It is current liability, because in very shorter period of time we have to pay this amount. ठीक है? Next is unearned income. It is also our current liability, that is unearned income. The income which we haven't earned, जो हमने कमाया नहीं है लेकिन जो हमें मिल चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनर्ड इनकम बोलते हैं। इसको समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए जिस प्रोमाइसेस में आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास 3 दुकानें हैं, ठीक है, पूरा का पूरा बिजनेस प्रोमाइसेस आपका है एंड यू आर हैविंग 3 शॉप्स। फर्स्ट वन इज यूजिंग by you only for your showroom. Second one is using also by you only as your godown, and the third one is spare now. और आपके पास किसी ने कांटेक्ट किया कि भाई आपका ये जो तीसरा दुकान है ये खाली है, क्या आप हमें इसको किराए पर दे सकते हैं? आपने बोला यस, बिल्कुल दे सकते हैं। आपने उससे अग्रीमेंट किया, आपने उसको बताया कि हर महीने का किराया होगा 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज, ठीक है। उसने भी अग्री कर दिया। आपने रेंट डीड बना ली और रेंट डीड के अकॉर्डिंग आपने ये लिख दिया कि भाई हमारा किराया 5,000 रुपया होगा
और हम इतना एडवांस लेंगे। तो आपने उसको बोला, और ये बात है 1 अप्रैल 19 की, आपने उसको बोला कि किराया 5,000 रुपया होगा, लेकिन तुमको एक साथ 15 महीनों का किराया देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने उसको 1 अप्रैल 19 को आपने उससे ले लिया 5,000 15 महीने के लिए। कितना लिया? 75,000। चलिए, बुक्स विल बी क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 की बात करते हैं। आपने किराया कितना लिया था? 75,000। क्या साल में 15 महीने होते हैं? आंसर इज ऑब्वियसली नो। साल में कितने महीने? ऑब्वियसली 12 मंथ्स। तो 12 महीनों का किराया ही आपकी इनकम माना जाएगा। तो रेंट इनकम है आपकी 60,000। 5,000 12 महीने के लिए 60,000। कैश कितना मिला? 75,000। इनकम 60,000। 15,000 रुपया आपको कैश मिल चुका है, बट इट इज योर अर्नड इनकम। इट इज योर अर्नड इनकम, इट इज योर लाइबिलिटी। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि लाइबिलिटी में दैट वी हैव टू पे विद इन अ ईयर। नो, यहां पर मैं आपको बोलूंगा, अपनी बात को मैं थोड़ा सा अब आपको मोल्ड करूंगा यहां पे, दैट we will not return this amount, but we will avail services of rupees 15,000 within shorter period of time। हम 15,000 रुपया जो हमने किराया एडवांस में लिया हुआ है, वो सर्विसेज हम आने वाले 3 महीनों में उसको दे देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कैश का पेमेंट नहीं करेंगे। सो ये हमारी लाइबिलिटी है कि हमने जिसका पैसा एडवांस में लिया हुआ है, हम उसको अपनी सर्विसेज आने वाले समय में प्रोवाइड करें। दैट इज व्हाई earned income is treated as current liability. Even cash outflow will not take place, but we will render them services within shorter period of time. So वापस इस एग्जांपल को नटशेल में रहते हैं। Rent is payable rupees 5,000 per month, and as per agreement we have received rent for 15 months, that is rupees 75,000. So cash receipt is rupees 75,000, है ना। रिसिप्ट और इनकम में फर्क अब समझ में आ रहा है। रिसिप्ट कितनी है? 75,000। इनकम कितनी है? 60,000। अर्नड इनकम कितनी है? 15,000। So what is the nature of earned income? It is current liability. Why earned income is current liability? Even we are not supposed to repay the cash, because we are supposed to render services within shorter period of time. That is why earned income is treated as current liability. Got it? And the last topic of this session is short term loans. देखिए, अभी आपने जो बैंक से लोन लिया था, वो हम मान लेते हैं कि 5 साल के लिए लिया। 4 साल के बाद आप क्या बोलोगे? इस लोन का पेमेंट आपको कब करना है? 1 साल के अंदर। तो अब ये चौथे साल के बाद यही बैंक लोन जिसको आपने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल के बिगिनिंग में आपने क्या माना था? लॉन्ग टर्म लोन। और यही बैंक लोन अब चौथे साल के एंड या 5th ईयर के बिगिनिंग से क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स। सो द लोन्स एंड एडवांसेस व्हिच हैव बीन रेज्ड for the shorter period of time, whose payment is to be made within a shorter period of time, is called short term loan. So guys, आज के इस सेशन में we have completed our 5 terms, that is transaction. A financial transaction is one which affects financial position of the business and which must be measurable into monetary term. Event, result of financial transaction. Account is a place opened into the ledger which summarizes transactions related to a particular assets, capital, liability, income and expense. And drawings, the amount which has been paid by the owner for his personal use from business resources is called drawings, and the liabilities, obligations of the business which is payable to the outsiders other than owner, is called liabilities. So this was all for this session. Have a good day. Take care. Bye bye.